Good evening, sir. Yes, good evening. राधिका start करें. Yes, sir. So आज we will start with conic section. Conic sections. Okay. So conic section is consist of 4 types of figures. First is ellipse, circle, parabola, and hyperbola. Okay. So today we will study about circles. तो इन सब की शेप्स जो आती है हमारे निकाल के वो कौन से आती है, मतलब कौन को हम किस टाइप से प्लेन से कट करते हैं उस टाइप से हमें शेप्स मिलती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कोन को इस टाइप से कट करेंगे प्लेन से तो आप देख सकते हैं Yes, कि sir. ऊपर कुछ इस टाइप से हमें फॉर्म होता हुआ मिलेगा. Yes, sir. सो दिस विल बी अ सर्कल. Yes, in other cases, like to form a parabola, will apply the plane to cut cone like this. Okay, उसको जब हम राइट व्यू से देखेंगे तो हमें कुछ कोन इस टाइप से दिखेगा, कुछ इस टाइप से कटा हुआ दिखेगा हमें. ओके, तो Yes, दिस sir. फिगर इज फॉर पैराबोला. ऐसे ही हमारा एलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए भी होता है. तो आज हम सर्कल पढ़ते हैं. सर्कल क्या होता है? एक इट इज अ सिंपल शेप हैविंग सेंटर सी. ओके, सो सेट ऑफ पॉइंट्स अगर हम कोई भी लें, जैसे एक पॉइंट हमने पी लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने टी लिया, तो सेंटर से इसकी पी से लेकर सेंटर की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? Radius. रेडियस. सो एंड सिमिलरली पीसी विल ऑल बी आल्सो रेडियस. Yes, sir. यस, एंड अगर हमने एम ले लिया कोई पॉइंट, देन दिस आल्सो विल बी द रेडियस. सर्कल Yes, इज अ sir. सेट ऑफ all points which are equidistant from center of circle. Okay, so in this case PC is equals to TC is equals to MC, which is radius. Yes, sir. Okay, so in circle we take center as means the coordinate of center as h comma k. Okay, and any another point which is on the circumference of circle like P, we take the coordinates as x comma y. Okay. So to form Yes, the sir. equation of circle, you know the distance formula, d under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 Yes, whole sir. square. X2 minus X1 plus Y2 minus Yes. Y1. So to find this radius, can we apply the distance formula here for PC? So PC will Yes, be sir. what? X minus h whole square plus y minus k whole square, which is equals to what? Radius. Understood? Yes, sir. So if we square both the sides, then x minus h whole square plus y minus k whole square will be equals to r square. So this is the Yes, sir. equation, general equation of circle. Okay, Yes, sir. so note कर लीजिए. सर ये रेडियस के पास इक्वल टू के बाद R लिखा है. Yes, this is r.
Done, sir. So as we know, the equation of circle we got here is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. And this is for the circle having center at h comma k. Yes. Yes, sir. Suppose the question says the center of a circle is at origin. So what will be the equation of circle? The question says that the center is at origin, means h comma k will be what? 0 comma 0. Yes, sir. Equation will become, so equation of, X square plus I square. yes, the equation of circle at circle having center at origin will be x square plus y square equals to r square. R square. Okay. So now if we take the question says find the equation of circle with center at 1 comma 2, okay, and the radius 5 units. Can you tell me the equation of radius? See, in all these cases we will use this equation. So h comma k हमारा क्या होगा इस equation इस question में? h comma क्या होते हैं हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स. Yes, sir. So इसमें हमें क्या दे रखा है कि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 comma 2. 1, 2. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x minus 1 whole square प्लस Yes, sir. y minus k हमारे पास क्या है 2, तो y minus 2 whole square equals to r square. r हमें गिवन है 5 यूनिट्स, सो इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. ठीक है, Yes, sir. नोट कर लीजिए. और नोट करने के बाद आप मुझे इसकी इक्वेशन बताना. इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर जो है इसका 3,4 है एंड रेडियस जो है इज 5 यूनिट्स. नॉट 3,4 माइनस 3,4. Radius is 5 units. Yes, radius is 5 In question 2. Yes, in both cases radius is 5 units. X plus 3 whole square plus y minus 4 whole square equals to 5 square. Okay, so x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square equals to 5 square. ठीक है, ये नोट कर लिया आपने बाकी. Yes, sir. ओके, सो अब क्वेश्चन है कि इन each of the following find center and radius of circle. तो सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन गिवन है x plus 5 whole square plus y plus 3 whole square equals to 36, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5, 3. दोबारा से बताइए, 5, 3. एक बार सोचिए आप दोबारा से. +5 है यहाँ पर, देखो आप. -5 and -3. यस, -5 Yes, कमा sir. -3. और रेडियस क्या होगा? 6. 6 रेडियस होगा, राइट. अच्छा,
समझ गए ना आपकी, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हमारा बाहर निकल के आता है माइनस टू, yes sir, है it ना? is same as last question. Yes, the last question. So now next question is x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 equals to 0. अगर हमें इस टाइप से इक्वेशन दे रखी होती है तो आप देख रहे हैं ये जैसे हम जब इसको ओपन करेंगे दोनों को तो ये ऐसे ही तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 into 2 into x which will be 10x a Yes plus b sir, whole square, and here also a plus b whole square. yes sir. So now we have given the open form of a plus b whole square in x and y. तो हमें अब बताना है इसका सेंटर के, तो इन केसेस में क्या करते हैं, आपको सॉल्व करना आता है कि इसको अगर हम वापस से इसी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं, Yes sir. तो करिए एक बार. आया कुछ आपका? No sir. देखो इनको कैसे करते हैं हम, फर्स्ट आप x के टर्म्स को एक साथ ले आइए, उनके एक्स स्क्वायर प्लस 8x अपने पास आ गए, प्लस Yes वाई sir. स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 8. आप 8 अलग कर दो, ठीक है, वो राइट हमें लिखा है, हम कहीं भी रख सकते हैं. Yes अब जो sir. हमारे x एंड y के कोफिशिएंट होंगे ना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर 8, 8. तो इसके आप हाफ का, x का 8 का हाफ क्या होगा, 4. 4. तो हम 4 स्क्वायर ऐड करेंगे और 4 स्क्वायर ही माइनस कर देंगे. अब बताओ अब ये करने से इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, No sir. क्योंकि हमने एक नंबर मतलब कि 4 स्क्वायर विच इज 16, हमने 16 ऐड करा एंड 16 ही माइनस कर दिया, Yes sir. है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे. सिमिलरली Yes sir. y के केस में भी हम ऐसे करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर 5 ऐड करेंगे square minus और 5 माइनस square. 5 स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू 8. 8. अब आप देखो ये कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, दोबारा से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8x, कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको बनता हुआ, देखो ये x प्लस 4 होल स्क्वायर है, Yes sir. देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x विच इज 8x, 8x भी हमारे पास, Yes sir. है ना. सिमिलरली अभी क्या यहाँ पर हमारा -4 रह गया, तो -4 अभी हम ऐसे लिख रख देते हैं, -4 स्क्वायर प्लस, अब देखो आप ये कुछ फॉर्मूला बनता हुआ देख रहे हैं, 5 + 5 होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, सर ये वाले स्टेप थोड़ा समझ में नहीं आया. देखो मैं दोबारा समझाता हूँ.
याद आ गया था, मैंने +4² - 4² जो करा था। Yes, sir. तो वही है ना, देखो अब देखो यहाँ पर x² + 8x। अब यहाँ पर मैंने +4² वाला पार्ट ले लिया, -4² वाला पार्ट नहीं लिया इनके साथ। Yes, sir. तो x² + 4² + 8x। अच्छा, मैं 8x को 2 इंटू 4 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4x लिख सकता हूँ मैं 8x को। Yes, sir. अब देखो a² + b² + 2 टाइम्स ab, Yes, sir. है ना, a + b²। तो बस वही बनाया हमने, और कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 4² अब बच्चा -4², तो -4² हमने इसे कैसे लिख दिया। सिमिलरली अब y के केस में +5² वाला पार्ट इसके साथ ले लेंगे हम, तो y + 5² बन जाएगा, Whole square minus 5 square. 5² = 8। अब जो 8. भी नंबर्स हैं हमारे ये वाले सब इनको राइट में ले जाते हैं। तो Yes, sir. x + 4² + y + 5² = 8 हमारा राइट में था ही। अब जब ये माइनस उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो +4² + 5²। ठीक है, Yes, sir. अब आपको इक्वेशन बनती हुई दिख रही है सर्कल की, Yes, sir. है ना। तो x + 4² + y + 5² = 8 + 16 + 25। 25. तो 8 + 16 will be what, 24, 24 + 24. 24 will be 49। 50. Okay, so x + 4² + y + 5² = 49। अब आप बताइए इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। 4. -4, -5. -4, -5, and radius will be what, 7 square. 7। r² will be 7² and 7, radius will 7, be 7. 7। 7. ठीक है, समझ में आया किस टाइप से करना है इसका प्रोसीजर। अभी एक और Yes, क्वेश्चन sir. करेंगे, उससे और आपको समझ में आएगा, पहले से नोट कर लो। So done. ओके, नाउ सॉल्व दिस। x² + y² -4x -8y -45 = 0। इसके आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देखिए एक बार अपनी तरफ से।
2 and 4. क्या है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स? 2 and 4. 2 and 4। ओके, अब चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वाई स्क्वायर माइनस 8y, 45 हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम प्लस हाफ माइनस हाफ क्या करेंगे? किसका? इसके केस में Plus 2 square minus माइनस 2 2 square. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। इधर क्या Plus करेंगे 4 हम? plus 4 square minus 4 square. इक्वल्स टू 45। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? x माइनस 2 होल स्क्वायर। Yes, sir. सिमिलरली इसका जो बन रहा है X minus 4 होल 4 स्क्वायर whole square. इक्वल्स टू 45 प्लस 4 स्क्वायर उधर चले जाएगा 16 प्लस 2 स्क्वायर उधर चले जाएगा तो 4। ठीक है, तो देखो सेंटर तो आ गया हमारे पास 2,4 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 प्लस 20 65। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है 65। Yes, sir. सो आर विल बी व्हाट रूट 65। तो रेडियस हमारा रूट 65 एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4। 2,4. ठीक है, तो समझ में आ गया आपको यानी क्वेश्चन कैसे होंगे? सेंटर आप निकालेंगे अपनी तरफ से। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point 4,1 and 6,5 and whose center lies on the line 4x plus y equals to 16। समझ में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन बताओ सर्कल की। वो सर्कल जो रहा है वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई कर रहा है। Yes, sir. एंड उसका सेंटर जो है वो इस लाइन से पास हो रहा है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है सो 4,1 एंड 6,5 कहीं पर भी हो सकते हैं। मान लो मैंने 4,1 यहाँ ले लिया और 6,5 कहीं भी ले सकते हैं। चलो यहाँ ले लिया मैंने 6,5। ठीक है, और सेंटर सी है। ठीक है, और सी हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लेते थे अगर हमें नहीं पता होता था? H and K. h, k। और हमें बोला है सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। और 4x प्लस वाई इस सेंटर से पास कर रही है। वो कैसे भी कर सकती है, ऐसे भी कैसे भी। तो मैं बना देते हैं, चलो ऐसे इस टाइप से पास कर रही है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। अब देखो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये Yes, sir. पॉइंट जो है दोनों 4,1 एंड 6,5 ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। Yes, sir. सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम h और k की जगह इनको पुट करेंगे, फिर x एंड y की जगह पुट करेंगे हम 4,1 और 6,5 को। X and Y की x एंड जगह. y की जगह, क्योंकि h और k तो हमारे सेंटर है। तो हाँ. 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y इज 1 1 माइनस k minus K square. होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। Square. सिमिलरली 6 एंड 5 के साथ हम कर सकते हैं रिपीट। 6 minus H square इक्वल्स plus 5 minus K square whole square. टू आर स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। Yes, sir. आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर, पहले पॉजिटिव वाले लिख देते हैं 1 माइनस के होल स्क्वायर। इसमें सबट्रैक्ट क्या हो रहा है 6 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप देख लो ये अगर हम h कॉमा के निकाल सकते हैं इसमें से। Yes, sir. सॉल्व करके निकल जाएगा. लेकिन अभी देखो आप इसमें 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इसमें h भी है k भी है। हमें चाहिए होता है कोई एक वेरिएबल, तभी हम निकाल सकते Yes, हैं, sir. Yes, sir. है ना। अब देखो
ये सेंटर जो है वो इस लाइन से पास कर रहा है, मतलब yes कि sir, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 को ये सेंटर सेटिस्फाई करेगा। yes sir, मतलब हम 4 को x की जगह हम h डाल सकते हैं, प्लस y की जगह हम k पुट कर सकते हैं k, इक्वल्स टू 16। yes sir, तो इधर से k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, k इक्वल्स टू 16 माइनस 4h, yes sir, है ना, ये 4h में उधर ले गया। अब ये k की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे जहां पर भी k है, ठीक है। yes sir, तो इसमें पुट करने के बाद ये मतलब कि लंबा हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस। मैं आपको फाइनल बता देता हूँ क्या आ सकता है इसका। होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस एच होल स्क्वायर इसी तरह से रहने देंगे, माइनस 5 माइनस के की जगह क्या है 16 माइनस 4h, और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका फाइनल अब वैल्यू किसकी आएगी, एच की आएगी हमारी इसमें से, एच yes एच है sir, बस इसमें। सो एच जो आएगा हमारा फाइनल आएगा 3, ठीक है। अब एक बार अगर हमारे पास एच आ गया, हम के निकाल सकते हैं यहाँ से, इसी क्वेश्चन से yes sir, क्वेश्चन 3 मान लेते हैं अगर इसे। तो k will be what 16 minus 4 into 3, 4, 16 minus 12 will be 4। 4, तो k की वैल्यू 4 आ गई, h की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें इक्वेशन निकालने के लिए h पता होना चाहिए, k पता होना चाहिए और r पता होना चाहिए। अभी r हमें पता नहीं, हमें h k तो पता चल गया, तो हम r कहाँ से निकालेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करके, हाँ, तो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखो आप, h और k की वैल्यू डालकर, हाँ h और k की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, 1 में या 2 में किसी में भी। yes sir, तो अगर 1 में पुट करेंगे हम, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, क्या चीज इरेज करूँ, चलो आप पहले नोट करो, फिर उसके बाद मुझे आर की वैल्यू आप बताना, एच और के को पुट करके। √5, रेडियस आपका है क्या, √5। 5, अच्छा चलो पुट करके देख लेते हैं हम। एच की वैल्यू 3 है, सो 4 माइनस 3 विल बी 1, प्लस yes sir, 1 माइनस के, 1 माइनस 4 विल बी -3, एंड -3 होल स्क्वायर इज 9, विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो आर की वैल्यू क्या आई, √10 आई है ना। yes sir, वो उसमें y में गलती हो गई, 6 आ गया, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। yes sir, तो नोट कर, पूरा नोट कर लीजिए आप पहले, ये कर लिया आपने।
Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 5 units whose center lies on x-axis and passes through 2,3। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. समझ में आया? देखो इसमें बोला है कि इक्वेशन बतानी है सर्कल की विथ अ रेडियस 5 यूनिट, उसका रेडियस 5 होना चाहिए और उसका सेंटर जो है लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और वो सर्कल जो है वो पास कर रहा है 2,3 का। 2,3 कहाँ लाई करेगा, कहाँ, यहीं कहीं लाई करेगा। 1 2 1 Yes, 2 sir. 3, so 2,3 will lie somewhere here। Yes, sir. यस, तो इसमें बोला है कि लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब कि सेंटर अगर समझो कहीं यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, हमने मान लिया इस सेंटर को x, 0, ठीक है, Yes, y sir. कोऑर्डिनेट तो 0 होगा यहाँ पर। Yes, sir. तो एक सर्कल हो सकता है हमारा ये, कि इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसा हो सकता है सर्कल जो 2,3 से पास कर रहा हो और उसका सेंटर ये है। अच्छा, कि एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई एक्स एक्सिस पर ही सर्कल हो लेकिन वो 2,3 से ही पास कर रहा हो। सोचो थोड़ा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस हो। नहीं नहीं, ये तो डिस्टेंस रेडियस हो गई, ये तो रेडियस है ही। ऐसा कोई और पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, जैसे एक्स एक्सिस पर कोई भी सर्कल लाई कर रहा हो लेकिन और वो 2,3 से पास भी कर रहा हो, ऐसा कोई और सर्कल है इसी के टाइप का, हो सकता है। अच्छा देखो, अगर हमने ले लिया यहाँ पर कहीं पे सेंटर, ठीक है, x, 0, Yes, sir. यहाँ से भी तो हो सकता है एक बड़ा सा सर्कल 2,3 से पास आउट हो रहा हो और सेंटर उसका माइनस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर हो। यस, Yes. ये पॉसिबिलिटी है Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अब हम अगर इसका वो बनाए, अच्छा पहले इसका अगर हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस क्या होगा, हमें रेडियस दे रखा है पहले से 5 यूनिट्स, Yes, sir. लेकिन अगर हमें इस x की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा ये, 5. 5 के। अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू 5। तो अच्छा 5 का होल स्क्वायर करना विच विल बी 25, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर 25 माइनस 9 इज 16। अब आप देख रहे हो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो देखो यहाँ तो x माइनस 2 बन जाएगा, लेकिन ये देख रहे हो आप 16 जो होगा +4 -4 में निकलेगा, Yes, sir. है ना? तो इसी की वजह से हमें एक यहाँ से हम अंदाजा ला सकते हैं कि इसके 2 सेंटर होंगे और हमने पहले ही निकाल लिया कि इसके 2 सेंटर्स होने चाहिए। तो जैसे x की वैल्यू एक अगर हम +4 लेके चलें तो x की वैल्यू क्या आएगी 6, Yes, sir. और एक बार अगर -4 लेकर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। Yes, sir. तो देखो ये जो है क्या है, -2 आ गया हमारा, Yes, sir. और ये वाला क्या होगा, ये डेफिनेटली +6 ही 6. होगा क्योंकि पॉजिटिव Yes, डायरेक्शन sir. ऑफ एक्स एक्सिस में, नेगेटिव में हमारा ये वाला सर्कल होगा, ठीक है। Yes, sir. और दोनों का रेडियस बराबर ही है, दोनों का रेडियस 5 ही है, बस सेंटर डिफरेंट हो गए, ठीक है। Yes, sir.
तो अब हमारे पास इन्होंने इक्वेशन पूछी थी सर्कल की, तो इक्वेशन अब दो आ जाएंगी। एक हो जाएगी कि सेंटर इसका क्या हो गया -2,0 और इसका क्या है 6,0। 6, सो 0. एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x+2 होल स्क्वायर प्लस y-0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? इस वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ये वाला जो है X minus 6 होल whole स्क्वायर square प्लस y-0 होल y स्क्वायर minus 0 whole square इक्वल्स टू equals 5 to स्क्वायर। 5 square. ठीक है, आगे समझ में आपको किस तरह से होना है? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लीजिए। Sir, done. ओके, अच्छा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं आपसे बोलूं कि x इज इक्वल्स टू 1, बताइए क्या होगी लाइन? x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन जो होगी किस टाइप से दिखेगी? जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो x इज इक्वल्स टू 1 की जैसे x इक्वल्स टू y क्या होता है, ये लाइन होती है। Yes, sir. अगर आपसे कोई बोले कि x इक्वल्स टू 1 की लाइन मुझे बना के दिखाओ तो कैसे हो सकती है? देखो इस टाइप से होती है, Parallel to y-axis. it will be straight line parallel to y-axis passing through 1, 0. Yes, Similarly, sir. x is equals to 2 अगर कोई पूछे तो x is equals to 2 कैसी होगी? पैरेलल टू y-axis होगी, बस 2 से पास कर रही Yes, होगी, sir. है ना? और x is equals to 0 क्या होगी? Coinciding on y-axis.
तो x इज इक्वल्स टू 0 अल्टीमेटली है क्या, हमारी y एक्सिस है। Yes, sir. ऐसे ही अगर हमसे कोई बोले कि y इक्वल्स टू 0 बताओ, तो वो क्या है अल्टीमेटली, जैसे y इज इक्वल्स टू 1 क्या X-axis. होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, तो Yes, y sir. इक्वल टू 0 क्या होगा, x एक्सिस, Yes, sir. है ना, समझ में आ गया कंसेप्ट। तो Yes, sir. एक क्वेश्चन है, सर्कल, जैसे सर्कल ऑफ रेडियस 6 यूनिट्स, ठीक है, टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ दिस सर्कल, ओके, और किस में इमेज निकालनी हमें, ऑन लाइन मिरर y इक्वल्स टू 0। अब देखो, पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन है, ये x एक्सिस है Yes, sir. ना। सर्कल बोला है कि सर्कल ऑफ रेडियस 6 यूनिट्स टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी कर रहा है दोनों को, है ना, और उसका रेडियस 6 है, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। देखो, इसका ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को भी टच कर रहा है, x एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि इसका रेडियस 6 है, मतलब कि अगर हम इसका सेंटर, ये बिल्कुल इसका सेंटर है C, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 6, 6. और ये डिस्टेंस कितना होगा 6. 6 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो अगर ये डिस्टेंस 6 है तो देखो यहाँ पर 6,0 होगा, Yes, sir. है ना, और सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस 6 है, तो ये देख लो आप, यहाँ पर 0,6. अगर ये पूरा 6 है यहाँ पर, है Yes, ना, sir. तो ये भी 0,6 होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके 6,6, 6,6. है ना, समझ में आया, इसके सेंटर हमें Yes, किस sir. टाइप से निकाले, Yes, sir. क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, देखो आप देखोगे तो Yes, sir. सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, मतलब कि ये Yes, sir. साइड इसकी इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इसका इक्वेशन निकाली हमें उस सर्कल की, वो जो इसकी इमेज फॉर्म कर रही होगी किस लाइन पर, y इक्वल्स टू 0 पर। अच्छा, y इक्वल्स टू 0 ये है हमारा, तो इसकी इमेज जो बन रही होगी इस पर, यहाँ कहीं बन रही होगी इस टाइप से, Yes, sir. है ना, इस टाइप से बनेगी, और कोई तो नहीं बनेगी इसकी इमेज, यही बनेगी। Yes, sir. तो इसको अगर हम इमेज को बनाए, इस टाइप से दिखेगी इमेज। अच्छा, अब Yes, अब sir. आप इसको देख के बताओ इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो, रेडियस तो इसका भी 6 ही होगा, Yes, sir. है ना, क्योंकि सर्कल ही है, सर्कल की शेप थोड़ा ना चेंज होगी मिरर में। 6, -6. 6,-6 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेंटर के, Yes, sir. और रेडियस हमारा 6 है ही, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मिरर सर्कल विल बी व्हाट, X -6 whole 6 square होल स्क्वायर, यस, plus y -6 whole square. Y plus 6 whole square.
से हाँ y प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r हमारा क्या 6 है? yes sir, 6। ठीक है, समझ में आ गया? yes sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको नोट कर लो आप पहले। Sir, done. ओके, एक क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5 units and touching the circle. What is the equation? X square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 equals to 0 externally at the point 5,5। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? पहले आप एक बार पहले समझो। Yes sir.
एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है हमें जो टच कर रहा है दूसरे सर्कल को, एक्सटर्नली टच कर रहा है, मतलब कि जैसे कुछ सर्कल होते हैं वो टच कर रहे होते हैं इस टाइप से इंटरनली, कि इस टाइप से टच करते हैं, ये इंटरनल टच कराता है। एक्सटर्नल टच मतलब कि एक सर्कल ऐसा है तो दूसरा सर्कल इस टाइप से, Yes, sir. ठीक है। तो ये दो सर्कल हैं इस टाइप से टच कर रहे हैं, पहले हम उनकी फिगर बना लेते हैं। ये मुझे पता नहीं सेम साइज के होंगे कैसे होंगे, हम अपनी तरफ से बना लेते हैं कि मान लो कि इस टाइप से दो सर्कल है। तो ये जो हमें जिस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका रेडियस दिया है 5 यूनिट्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 है, Yes, sir. सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस 5 है। अच्छा, इस सर्कल की हमें इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका हम सेंटर निकाल सकते हैं सर्कल का, जो मेथड बताया था मैंने आपको। Yes, sir. तो x² आप निकाल के बताओ मुझे, माइनस 2x प्लस y² माइनस 4y इक्वल्स टू 20 लिख देंगे हम। उसके बाद क्या प्लस माइनस करेंगे हम, x के केस में हम क्या करेंगे, माइनस प्लस। Minus 1 square plus plus 1 square minus 1 square ओके, इधर क्या करेंगे, प्लस 2² माइनस 2² इक्वल्स टू minus 2 20। squares equals to तो ये 20. क्या बन गया, X plus 2 whole square. x माइनस 1 होल स्क्वायर। X minus 1 whole square. ओके, ये क्या बनेगा, ये बनेगा y Y माइनस minus 2 होल स्क्वायर। 2 whole square. ओके, और राइट में हम सबको ले आते हैं बाकी जो बचे हैं, प्लस माइनस Yes, 2 sir. स्क्वायर उधर जाके 4 बन जाएगा, प्लस Yes, sir. ये वाला एक 1 इधर आ जाएगा। 1. तो देखो 20. सेंटर क्या मिला हमें, 1,2 मिल गया सेंटर। Yes, sir. तो इसका सेंटर क्या हुआ, 1,2। Yes, ठीक sir. है, अब अगर हम इधर इधर और सॉल्व कर लेते हैं तो 20 प्लस 5 क्या बनेगा इधर, 25। 25. तो Yes, sir. रेडियस क्या आ गया हमारा, 5. 5। 5। तो एक चीज हमें पता चल गई, ये भी डिस्टेंस 5 है। इसका मतलब क्या हो, ये दोनों सर्कल सेम साइज के, देखो दोनों का रेडियस 5 आया तो मतलब दोनों का साइज सेम होगा, Yes, sir. है ना। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस वाले सर्कल के इक्वेशन निकालनी है हमें। तो और हमें क्या बोला है, देखो एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5,5, मतलब कि ये पॉइंट क्या है जहां पर टच कर रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 5,5। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें निकालने इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। देखो, या तो एक तरीका है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, एक बार जैसे इसको अगर हमने मान लिया h कॉमा के, तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला इसके बीच में लगा है 5,5 Yes, sir. एंड h ये रहा, ठीक है। तो क्या होगा, 5 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर रूट, ठीक है, ये किसके होगा, 5 के इक्वल। सिमिलरली एक लगा सकते हैं हम इसके बीच के डिस्टेंस, जैसे अगर ये सेंटर P है ये है C, तो एक PC के लिए लगा सकते हैं हम, PC इक्वल्स टू होगा किसके, 10 के, क्योंकि 5 प्लस 5, Yes, sir. है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर, फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एच एंड के आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा बैठ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे सेक्शन फॉर्मूला से करके देखते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट लाइंस में। देखो ये Yes, sir. एक लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, 5,5 है, एक है 1,2, एक है x,y जो हमें पता नहीं। अच्छा, ये m:n रेशियो में जो डिवाइड होते थे, इसमें m/n क्या है हमारा, मतलब कि m और n दोनों क्या है हमारे, देखो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों 5 है, देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, ये हाफ Yes, sir. डिस्टेंस Yes, है ना। sir. तो m:n क्या है, 1:1, 1:1. है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या था, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ।
तो सेक्शन फॉर्मूला होता था mx2 nx1 अपॉन m+n, ठीक है। तो ये वाला x अल्टीमेटली होता क्या था, बीच Yes, वाला sir. पार्ट, तो हमें 5 गिवन है ऑलरेडी, तो ये x तो हमें पता है, तो 5 इक्वल्स टू m क्या है 1 x2 इज व्हाट, दिस x दिस 1 प्लस n दोबारा से 1 है हमारा, और x1 क्या है जो हमें निकालना है, ये x अपॉन Yes, sir. m+n विच इज 2, तो 2 इधर लेके चलेंगे हम, so 10 will be equals to 1 plus x will be what 9। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, Yes, sir. है ना। तो y और x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इक्वेशन लिख देंगे सर्कल की, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, रेडियस भी पता है, Yes, sir. निकाल लेंगे फिर, ठीक है। इस टाइप से होगा, तो आप नोट कर लीजिए। Yes, sir.